Hello students, today's topic is society and social control, and this topic you can see on page number 35, started from page number 35 and just going on page number 36 and then 37. So you have already read about the society, and after reading these first second chapters, now you have knowledgeable with the so many terms concepts related with the society and sociology, and it is also well known that society is the group of the people, or all the social groups are related to the human beings, and you have just read in the history and anthropology that human has converted or transformed from the animals, or the animals likes apes, means monkeys. So it has some properties of the animals also, and sometimes zoology, botany, and some sociologists also say that human is a social animal. So it is also defined and accepted by so many scientists and sociologists that human is just like a social animal, and we can also not reject this philosophy and this concept that human is also have some properties of the some animals. Just you can see that sometimes human beings quarrel with each other, they fight with each other, sometimes they also love with each other, and these habits, means these senses and these emotions are also found in the less or in the high quantity, large quantity in animals also, and the proportion of these emotions may be variable in the different animals, and also same as these emotions or their quantities and qualities are variable in the human beings also. But we cannot reject that any humankind is, or any a single man or woman is senseless, or you can say these emotionless. So it means human is a social animal with some emotions, and sometimes the human being just reaches at the extreme point of his or her emotions, and then these emotions became the cause for the conflict, anger, and reason for the war or struggle, and human automatically try to fight, try to take revenge, try to weep, try to show his or her anger, and sometimes try to faith, or try to love with others, and when these emotions reaches at the extreme point, then sometimes these may be the harmful for the human beings, and especially these will be harmful for the societies and social norms. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्लियर है कि इंसानों के अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो उनके अंदर सेंस ऑर्गन से डिफरेंट टाइप के इमोशनल, आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन कभी गुस्सा करता है, कभी प्रेम दिखाता है, कभी वो क्रोध दिखाता है और लड़ाई झगड़े भी करता है। तो जब एक्सट्रीम पॉइंट पर, अपनी चरम सीमा पर ये इमोशंस पहुंच जाते हैं, तो इंसान क्या करता है, जो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सामाजिक नियम है, कानून है, दायरे हैं, लिमिटेशंस हैं,
परिवार की, समाज की, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल जो है वो संविधान और कानून। जब इंसान लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करके, सीमाओं को पार करके वो परिवार की, समाज की जो वैल्यूज़ हैं उनको तोड़ करके वो भागना चाहता है और दूसरे इंसानों का नुकसान करना चाहता है, या अपने आप को दूसरे इंसानों पर वो मजबूरन ज़बरदस्ती थोपना चाहता है, तो ऐसे में सामाजिक व्यवस्था का जो ताना बाना है, जो सोशल सिस्टम है, ऑर्डर है, रोल्स का, स्टेटस का, और जितने भी वैल्यूज़ हैं, जो रिलेशंस हैं, वो सब क्या होने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति सामाजिक अपराधी है, पारिवारिक अपराधी है, या कानून की नज़र में कानूनी तौर पर अपराधी है, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट देने की योजना बनने लगती है। मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना और वो स्कूल नहीं जा रहा कई दिनों से, या उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है, तो अब क्या होगा? क्योंकि एज ए चाइल्ड इट इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट बॉय और गर्ल और चाइल्ड टू गो टू स्कूल एंड टू ज्वाइन देयर कलीग्स। एक बच्चा होने के नाते, उम्र की उस पड़ाव पर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है कि वो स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई करे और समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल रहे। यदि वो कहता नहीं किसी को पढ़ना है तो पढ़े, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि उसने नियमों का, समाज के उस आप कह सकते हैं वैल्यूज़ का, और जो उस उम्र के हिसाब से एक वर्क डिवीज़न है होना चाहिए, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे के ऊपर पारिवारिक, सामाजिक तौर पर जो जिम्मेदारी है उसका उल्लंघन करने के जुर्म में उसे जो पनिशमेंट या जो पारिवारिक, सामाजिक दंड उसे दिया जाना चाहिए वो दिया जाता है। उसे परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से ताने सुनने को मिलते हैं, और लोग ये कहते हैं कि वो जिस उम्र का है, जिस बाल वृत्ति का है, उसको ना फॉलो करके वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, और फिर समाज उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, कंट्रोल करने का प्रयास करता है। माता पिता उस बच्चे को समझाते हैं, स्कूल के टीचर समझाते हैं, प्रिंसिपल समझाते हैं, और वो सारे एफ़र्ट किए जाते हैं जो इस सोशल कंट्रोल, सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक जो नियंत्रण है उसके तौर पर जो अपनाए जा सकते हैं वो सारे प्रयास किए जाते हैं। और आपको पता है कि समाज में लोग नियमों को भंग करके पारिवारिक रिश्तों के खिलाफ़ न जाएं, या अपने दायरे से कहीं अधिक आगे बढ़ कर के वो किसी का अहित न कर दें। जैसे कि सामान्य तौर पर आपने देखा होगा समाज में किसी के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, गुस्सा दिखाना, या अपने से बड़ों का निरादर करना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सामाजिक नियमों का, सामाजिक दायरों का, पारिवारिक दायरों का उल्लंघन माना जाता है। इट इज़ द डिसओबे ऑफ द सोशल, मोरल एंड फैमिली लॉज। और इसके एवज़ में क्या होता है, उस व्यक्ति को सामाजिक, पारिवारिक और कभी कभी कानूनी या संवैधानिक जो दंड हैं उन दंडों को भुगतना पड़ता है, उसे पनिशमेंट मिलता है। तो सोशल कंट्रोल सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही वो फैक्टर है जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को आज तक जितने भी डिफरेंट हिस्ट्री में एजेस आए हुए हैं उस टाइम पीरियड में सभी समाजों को उसने बांधे रखा है, और ह्यूमन को एक सोशलाइज्ड, एक सामाजिक कंट्रोल में रख करके उसको आगे रन करवा रहा है।